Hello guys and welcome back to our YouTube channel Law and Order. So today I am bringing you the latest update and breaking news. So I hope that you all are aware about the Pune Porsche accident. So this high speed car crash involving a luxury Porsche shocked the resident of India. So आप सभी को पता है इसके बारे में, तो अब हम कुछ इसके फैक्ट्स, कुछ इसके बैकग्राउंड्स के बारे में जानते हैं. सो अ 17 years old boy early morning of May 19th Sunday who was with his friends was driving his Porsche at a high speed in the Kalyani Nagar area when he crashed into a two-wheeler killing the two people on it. एक 17 साल का एक टीनेजर लड़का जो कि इतनी लग्जरी कार्स में अपने दोस्तों के साथ जब पार्टी करते हुए लौट रहा था तो उसने सड़क पे दो लोगों की जान ले ली. वो माइनर सन जो है वो एक रियल एस्टेट डेवलपर का बेटा था. पुलिस ने बताया कि वो जो जुवेनाइल जो माइनर था वो ड्रंक था उस टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे. So he was subsequently produced before the Juvenile Justice Board and which granted him bails hours later. बाद में उसको बेल दे दी गई. Vishnu Agrawal, the father of the teen, was sent to the police custody till Friday 24 the road accident cases. So लड़के को बेल दे दी गई लेकिन उसके फादर को जो है वो 24 मई तक कस्टडी में रख लिया गया. Before the accident, the teen along with his friends drank alcohol at two pubs in the city, Kosi and Balak Marriott. He spent almost rupees 48,000 in 19 minutes at Kosi, which the teen and his friends visited at 10:40 p.m. on Saturday evening. They left for the second pub, Black Marriott, at 12:10 a.m. after Kosi stopped serving them. So, अब मैं बताती हूँ कि वो जो मरने वाले थे वो कौन थे. सो 2 IT प्रोफेशनल्स डाइड इन द क्रैश. दे वर आइडेंटिफाइड एज अनीश अवधिया एंड अश्विनी कोस्टा, बोथ रेजिडेंट ऑफ MP. अवधिया वॉज अ रेजिडेंट ऑफ बिरसिंहपुर पाली इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट, वेयर एज कोस्टा हेल फ्रॉम जबलपुर. एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एक माइनर ने दो लोगों की जान दे दी और बाद में कोर्ट ने जो है उसे चंद घंटों में, कुछ 15 घंटों के अंदर अंदर ही बेल दे दी. तो जो बेल का ऑर्डर था वो दिया गया उसके ग्रैंडफादर की एश्योरिटी पे. उसके ग्रैंडफादर ने ये एश्योरिटी दी थी कि वो जो CCL है यानी कि जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है उसको वो बैड कंपनी से दूर रखेंगे एंड ही विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडी और एनी वोकेशनल कोर्स विच इज़ यूजफुल फॉर हिज करियर. सो जो बेल ऑर्डर था जिसमें कोर्ट ने 7 पॉइंट्स मेंशन किए थे, तो मेंशन करते हुए कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो है कि CCL है, CCL मीन्स चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि यहाँ पे CCL है वो माइनर, वो टीनेज लड़का इज रिलीज ऑन बेल ऑन एग्जीक्यूटिंग हिज पर्सनल बॉन्ड ऑफ ₹7,500 with the following condition. So the conditions were like the parents shall take care of him and he will never involve in these kind of activities in future. The parents is directed to present him before the board when required. The parents is directed to keep away from bad company. He will visit RTO office and study all the rules and write essay of 300 words on topic road accident and their solution. He will practice and study traffic rules and submit reports to the Juvenile Justice Board. Refer him to Mutangan for external dedication counseling after counseling report submitted by him. Consult CCL to psychiatrist, doctor and psychology of Season Hospital Pune and submit report to the board within 15 days. सो अलॉन्ग विथ दिस उसके जो फादर और जो होटल का ओनर है उनके ऊपर भी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं. सो पुलिस रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द टीनेजर्स फादर अंडर सेक्शन 75 and 77 of the Juvenile Justice Act and against the owner and the employee of 2 bars for serving alcohol to an underage person. तो सेक्शन 77 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का वो डील करता है willful neglect of a child or exposing a child to mental or physical illness. यानी कि यहाँ पे जो पुलिस ने उसके फादर के ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो चार्जेस कुछ इस तरीके से हैं कि उन्होंने अपने जो चाइल्ड को वो है वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया
क्योंकि एक अंडर एज बच्चे को, एक माइनर बच्चे को आप एक गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हो जिसके पास अभी तक लाइसेंस भी नहीं है, तो दैट इज़ टोटली अ विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ अ चाइल्ड. एंड सेक्शन 77 डील्स विथ सप्लाइंग अ चाइल्ड विद इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड और ड्रग्स, जो कि चार्जेस लगे हैं होटल ओनर पर. इसके साथ ही उनके फादर के ऊपर सेक्शन 3 जो कि बात करता है नेसेसिटी फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, सेक्शन 3 and 4 of responsibility of owners of motor vehicles for contravention, and section 199A offenses by juveniles of the motor vehicle act. So ये तीनों जो sections हैं वो motor vehicle act के sections हैं जो कि उसके फादर पर लगाए गए हैं माइनर के बिहाफ पे. अब वो चार्जेस जो उस माइनर बॉय पे फ्रेम किए गए हैं वो है आईपीसी का सेक्शन 304 जो बात करता है कल्पेबल होमोसाइड दैट इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. 304A जो डील करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. आर्टिकल 270 सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी जो बात करता है रश ड्राइविंग के बारे में. आईपीसी का सेक्शन 337 जो बात करता है कॉजिंग हर्ट बाय एन एक्ट विच एंडेंजर्स ह्यूमन लाइफ. Section 338 causing grievous hurt by an act endangering life or personal safety, and relevant sections of the Motor Vehicles Act like section 185 of the Motor Vehicle Act जो क्रिमिनलाइज करता है ड्रंक ड्राइविंग. एंड अगर इसमें माइनर को कन्विक्ट किया जाता है तो उसको अप टू 6 मंथ जेल एंड 10,000 रुपीज़ का फाइन जो है उसके ऊपर लगाया जा सकता है. एंड अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ऑन 22 मई द बोर्ड कैंसिल द माइनर्स बेल एंड सेंड हिम टू द रिहेबिलिटेशन और ऑब्जर्वेशन होम टिल जून 5, यानी कि 5 जून तक जो है वो उसको रिमांड पे भेज दिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए. अब अगर अपन बात करते हैं कि इंडिया में अगर कोई माइनर के ऊपर जो है वो ड्रंक अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या लॉज हैं इंडिया में. सो फॉर माइनर ऑफेंडर्स द गार्जियन और ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल विल बी हेल्ड गिल्टी of the contravention and the juvenile will face fines and other penalties as provided in the act. यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग या मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई ड्रंकन ड्राइविंग जो है माइनर मिलता है तो उसके पेरेंट्स पर जो है वो चार्जेस लगाए जाते हैं और उसी के साथ साथ उसके जो गार्जियन है उसको 3 years की जेल के साथ साथ उसके ऊपर 25,000 का फाइन भी लगाया जाता है. और उनका जो व्हीकल है जो भी उनका व्हीकल होगा उसका रजिस्ट्रेशन 12 months के लिए जो है वो कैंसिल कर दिया जाता है. एंड उस माइनर को 25 years तक का होने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको जो है लर्नर का परमिट मिलेगा अंडर सेक्शन 8 and 9 ऑफ ड्राइवर्स लाइसेंस. एंड उसके बाद द जुवेनाइल शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइन्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट and any subject sentence involving imprisonment may be altered in accordance with the Juvenile Justice Act 2000. So these are the basic laws which are employed on the minors in India. So this all are the news about the Pune Porsche incident. अभी और भी बहुत सारी लगातार खबरें आ रही हैं, लगातार जो है वो कोर्ट में जाके कोर्ट कभी कभी कुछ जैसे बेल अभी कैंसिल कर दी है, बहुत सारी चीज़ें. सो स्टे ट्यून एज वी डाइव डीपर इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस शॉकिंग इंसिडेंट इंक्लूडिंग कोर्ट्स फर्दर ऑर्डर एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस ऑन रोड सेफ्टी. Thank you. And at last, I want to ask you that what do you think that could be done to improve road safety in cities like Pune? So let us know in the comment section below. So like, share and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.